Hello dear students, I welcome you all to the official YouTube channel of Akash Institute, specially designed for class 8th, 9th and 10th. And on this channel, you will find supportive and informative videos that will be very helpful for you in your learning journey. So do subscribe the channel. In this video, we will be looking at some sample questions from ANTHE Class 7. So those of you who don't know about ANTHE is Akash National Talent Hunt exam. That is our flagship scholarship exam that can give you a golden opportunity to avail a scholarship up to 100%. So if you are preparing or you want to prepare in the future for Olympiads, NEET or JEE, this is a very good starting place for you. So without any further delay, let's start with this video. But before starting, I want to tell you that if you want to learn more about ANTHE, there is a link in the description box. You can go over there, you can learn more about ANTHE and you can register for ANTHE. So I will be showing you some of the questions that comes in ANTHE so that you could know that what all types of questions are there. So in this video, we will be learning about a subsection of science that is biology, right? So in biology, we have two categories. Firstly, 6 questions are SC MCQs, right? And 1 question is MC MCQ. So in these 6 questions, you will have a single correct answer, but in this one question, you will be having multiple correct answers, right? So in total, we have 7 questions from this section that is biology. So 7 questions you need to do right in this section of science. Now let's proceed with the first question. Select the incorrect statement amongst the following. So we have 4 statements given over here. We need to select the incorrect one. आपको incorrect statement को find out करना है. तो जल्दी जल्दी से statements पढ़ लेते हैं और incorrect को find out कर लेते हैं. First one is during adolescence, the body prepares for infancy. So adolescence जो एक period है हमारी लाइफ जर्नी का, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हमें रिप्रोडक्टिवली मैच्योर बनाते हैं. ठीक है, तो ये सारे चेंजेस रिलेटेड हैं विद द रिप्रोडक्शन एंड दीज ऑल चेंजेस आर मेकिंग यू अ मेल और अ फीमेल, राइट? सो इसमें आपकी बॉडी इन्फेंसी की तरफ प्रिपेयर नहीं करती. कहां की तरफ जाती है? फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. तो जब आपकी बॉडी चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रही है तो बीच में जो पीरियड आता है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस, राइट? एडोलेसेंस या कॉमन लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? टीनेज, राइट? सो ये पीरियड हमारा चलता है जनरली फ्रॉम 11 और लेट्स से 12 टू 19 और 20 ईयर्स ऑफ एज, राइट? तभी देखो टीन आ रहा है ज्यादातर में 13 टू 19 जनरली, राइट? सो ये हमारा जो एडोलेसेंस पीरियड है, ये टीनेज पीरियड है, वो इस ड्यूरेशन में चलता है. सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है. इसमें देखो बॉडी इन्फेंसी की तरफ प्रिपेयर नहीं कर रही है, एडल्टहुड में जाने की तरफ प्रिपेयर कर रही है. इसी वजह से ये जो ऑप्शन है हमारा गलत है. Second is acne occurs due to increase in oily secretions from the skin. So this one is correct. ये हमारा correct है. हमारे इस पीरियड में क्या होता है कि ऑयली सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं. हमारी स्किन में जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ज्यादा सिक्रीट करने लग जाते हैं. उसी वजह से एक्ने और पिंपल्स का जो प्रॉब्लम है वो होता है टीनेजर्स में, राइट? Menstrual cycle is a sign of good reproductive health. So menstrual cycle होता है फीमेल्स में, जो कि एक अच्छा साइन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. सो अगर ये प्रॉपरली आफ्टर एवरी 28 to 30 days हो रहा है ये साइकिल, सो इट इज अ गुड साइन, राइट?
फोर्थ इज एडोलेसेंस लीड्स टू इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस. सो बेसिकली फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं और बिहेवियर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन इज. दो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हमें करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है. सो यू कैन सी इट ओवर हियर. लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. सो ये करेक्ट है, ये डायरेक्टली आपको बुक में मिल जाएगा. ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर्स की होती है. सेकंड पे चल लेते हैं, लॉन्गर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये गलत है, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा वाइड होती है. ठीक है, सपोज ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर है. ठीक है, सो दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन और ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. सो यू कैन सी इट ओवर हियर दैट द डिफरेंस इज इन द डायामीटर. तो डायामीटर का डिफरेंस है, इसीलिए इसका नाम लार्ज है और इसका नाम स्मॉल है. ठीक है, तो इसका डायामीटर लार्ज है, ना कि इसकी लेंथ. स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं लेंथ की बात करूं सो इट इज अराउंड 6 मीटर्स और लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं लेंथ की बात करूं सो इट इज अराउंड 1.5 मीटर्स. ठीक है, सो दिस इज द लेंथ. सो यू कैन सी इट ओवर हियर. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि ए हमारा ट्रू है यहां पे. ठीक है, तो ऑप्शन 1 बोल रहा है कि ए ट्रू है, सो दिस इज द आंसर. बी हमारा रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि लॉन्गर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होती लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है. अभी हम डायग्राम भी देख लेते हैं, उससे हम लोगों को समझ आ जाएगा. सो ओवर हियर वी हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो हमारी है दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? दिस वन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. और बात कर लेते हैं इसकी, तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन. सो यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस वन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये ज्यादा ब्रॉडर है बट लेंथ में इतनी ज्यादा लंबी नहीं है. ठीक है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके ये दोनों पार्ट्स हैं. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन और ऑप्शन 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलो. सो ओवर हियर वी हैव द क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू अबव डिपिक्टेड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. सो ये हमारा कैसा क्वेश्चन है? दिस इज MCQ. इसमें हमारे पास मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, मतलब 1 और 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं. तो हमें देख के इसको सॉल्व करना है, राइट? सो अब हमें क्या पूछा है इसमें? हमें पहले आइडेंटिफाई करना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ये इनहेलेशन है या एक्सहेलेशन है. देखो अब हो क्या रहा है, हवा बाहर की तरफ जा रही है, हवा यहां से बाहर की तरफ मूव कर रही है. सो दिस इज एक्चुअली एक्सहेलेशन. देखो एयर इज फोर्स्ड आउट, यहां पे दिया हुआ है एयर इज फोर्स्ड आउट, राइट? तो एयर हमारी बाहर की तरफ मूव कर रही है, सो दैट इज एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन. अब आप लोग सांस एक बार छोड़ के देखो. ठीक है, ट्राई टू ब्रीथ आउट. जब आप सांस छोड़ोगे तो जो जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं या फील कर पा रहे हो उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा. सो हमें क्या करना है? हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट इज इट रिड्यूसेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी. तो जब आप सांस छोड़ते हो, जब आपने सांस छोड़ा तो क्या होगा? आपका जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा चेस्ट कैविटी का, राइट? सो ये तो ठीक है. ठीक है, आपका जो स्पेस है वो रिड्यूस हो गया. सेकंड इज इट रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. तो ये मैं बता चुका हूं, एक्सहेलेशन दिखा रहा है ये. इट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी. तो ये इसका ऑपोजिट है, तो ये तो गलत हो जाएगा. ये किस में होता है? इनहेलेशन. जब आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है. इट कॉजेज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. सो इसमें क्या होता है? डायफ्राम का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो होता है इन एक्सहेलेशन. देखो ये अपवर्ड मूव करेगा, चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो रिड्यूस होगा, तभी हवा बाहर की तरफ जाएगी. सो दिस वन विल ऑल्सो बी करेक्ट. तो देखो इसके 3 आंसर्स करेक्ट हैं, 1 2 and 4. सो दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट? 1 2 and 4, राइट? सो MCQs
आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। सो आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हमें लग रहे हैं, राइट? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे, और बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होते हैं, तो यहां से आप टाइम बचा के किसी और सब्जेक्ट में उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। सो जल्दी से सब लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंथे के बारे में पढ़ सकते हो आप। इसके लिए रजिस्टर करो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं करा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हेमलता एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच देयर रिस्पेक्टिव प्रोसेस इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हमें उन प्रोसेस की करेक्ट मैचिंग यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले वाटर साइकिल समझ लेते हैं। क्या कहता है वाटर साइकिल? कि वाटर जहां से शुरू हुआ घूम फिर के वापस वहीं आ जाएगा। क्लियर? तो देखो इनिशियली होता क्या है, रिवर्स, ओशियंस सोर्स ऑफ वाटर है ये हमारे पास। इन रिवर्स और ओशियन पे जब सनरेज पड़ती है तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। तो सबसे पहले वाटर आपका कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में। चलिए, और ये जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ना, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इवेपोरेशन। वाटर का कन्वर्जन इनटू वाटर वेपर इज इवेपोरेशन। अब ये वाटर वेपर क्या है, ऊपर की तरफ जाता है, कूल होता है, कंडेंस होता है, और क्या फॉर्मेशन होती है इससे? क्लाउड्स की। एक्चुअल में क्लाउड्स है क्या? क्लाउड्स में बहुत सारा लिक्विड है, या मैं कहूं बहुत सारा पानी है। तो ये वाटर वेपर कूल और कंडेंस होके क्लाउड बनाता है, या आप यूं कह लीजिए वाटर फॉर्म करता है। सो यस, क्लाउड, और इस क्लाउड में है क्या? वाटर। तो ये वाटर वेपर जो फिर से वाटर बना कूल एंड कंडेंस होके, इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। मैंने वर्ड यूज किया, कंडेंस होता है पानी, पानी कंडेंस हो रहा है तो कंडेंसेशन। अब ये क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं तो क्या होगा? ये बरसेंगे। बरसेंगे तो इनके अंदर है क्या? पानी। दैट इज ये पानी ही बरसेगा। तो यही वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन बरसेगा। रेन, हेल या फिर स्नो। सो यस, यही पानी जब रेन, हेल या स्नो की फॉर्म में दोबारा आता है अर्थ पर। अर्थ से पानी शुरू हुआ था, वापिस अर्थ पे ही आ गया वाटर साइकिल। अब ये वाटर जो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये है आपका पूरा वाटर साइकिल। अब ऑप्शंस देख लो, क्या कह रहा है पहला ऑप्शन? वाटर वेपर टर्निंग इनटू क्लाउड्स इज इवेपोरेशन। नो, वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर इज इवेपोरेशन। दैट मींस ऑप्शन ए है इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लो, वाटर फॉलिंग एज रेन और स्नो इज प्रेसिपिटेशन। सो यस, वाटर जब रेन या स्नो की फॉर्म में आता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ऑप्शन बी है करेक्ट। नेक्स्ट, वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड। सी, वाटर जब भी ग्राउंड में जाता है ना, तो इस चीज को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, पर यहां लिखा है कंडेंसेशन, तो ऑप्शन सी भी हो गया गलत। नेक्स्ट, वाटर वेपर टर्निंग इनटू लिक्विड। वाटर वेपर लिक्विड में बदल रहे हैं। वाटर वेपर लिक्विड यानी ये वाटर में बदल रहे हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? कंडेंसेशन, पर इन्होंने दिया है इनफिल्ट्रेशन, तो ऑप्शन डी भी हो गया गलत। दैट मीन्स यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन बी। अब ये देखो क्या लिखा है, बी ओनली विच इज ट्रू। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बी ओनली। ये देखिए यहां पे भी लिखा हुआ है दैट बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रेप्रेजेंट्स अ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बैटरी का सिंबल क्या होता है? तो चलो एक एक करके सिंबल्स को देखते हैं। पहला सिंबल है हमारा बल्ब का, आपको देखते ही पता चल रहा है ना ये बल्ब है, सो दिस इज द सिंबल फॉर बल्ब, पर उसने पूछा था बैटरी, तो गलत। सेकंड देखो क्या है, सेकंड में क्या है, ये हमारा स्विच है,
इन ऑन पोजीशन, स्विच जब भी ऑन पोजीशन में होता है तो हम उसे इस तरह से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स ये भी बैटरी नहीं है। थर्ड क्या है, एक लाइन, ये क्या एक्चुअल में वायर, वायर है ये आपकी, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ फोर्थ बच गया, बट फिर भी इसे चेक करते हैं। तो देखो, आप लोगों को सेल पता है, सेल होता है कुछ ऐसा, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इन्हीं सेल को जब मैं कंबाइन कर दूं, जब एक से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़ दूं, तो इसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम कहते हैं बैटरी, जो कि आप यहां देख सकते हो, वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दैट मीन्स ये हो गया मेरा बैटरी का सिंबल। सो आप लोगों ने देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन, जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए सिंबल्स की। चलिए, सो ऑप्शन 4 था हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू टाइप है, दैट मीन्स इन 4 ऑप्शंस में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन करेक्ट हो। क्लियर? चलो क्वेश्चन पढ़ो। अ गर्ल गोज ऑन मॉर्निंग वॉक विद हर फादर, शी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट P एंड रीचेस टू पॉइंट Q इन 1/4 ऑफ एन आवर। तो मान लो ये है आपका पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। P से Q तक जाने में उसे टाइम कितना लगा? टाइम फ्रॉम P टू Q कह रहे हैं वो 1/4 ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 1/4, दैट मीन्स 1 आवर डिवाइडेड बाय 4। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4, दैट इज ये क्या हो गया आपका 15 मिनट, बिकॉज 4 15s आर 60। अब देखो, एंड रिटर्न्स टू हर स्टार्टिंग पॉइंट इन 30 मिनट्स। इसका मतलब P से Q जाने में उसे लगे 15 मिनट्स, पर Q से P आने में उसे लगे 30 मिनट्स। Q से P तक आने में उसे लगे 30 मिनट। नेक्स्ट, इफ द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 3 किलोमीटर, इसका मतलब इनके बीच की ये दूरी कितनी दे रखी है मुझे? 3 किलोमीटर। P से Q का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन इन चारों में से। अब देखो, जो P से Q का डिस्टेंस है वही Q से P का डिस्टेंस होगा। अगर P से Q 3 किलोमीटर है तो Q से P भी कितना होगा? 3 किलोमीटर। चलिए, P से Q टाइम लग रहा है 15 मिनट, पर Q से P लग रहे हैं 30 मिनट। इसका मतलब डिस्टेंस तो इक्वल कवर हो रहा है, P से Q, Q से P, डिस्टेंस तो इक्वल कवर हो रहा है, पर टाइम क्या है दोनों के? डिफरेंट। टाइम है दोनों के डिफरेंट, और इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन डिस्टेंस इज सेम बट टाइम इज डिफरेंट। तो पहला ऑप्शन देखो, हर मोशन इज यूनिफॉर्म, नो। हर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, यस। तो ऑप्शन 2 तो फिलहाल हुआ करेक्ट। थर्ड फोर्थ ऑप्शन में उसकी एवरेज स्पीड पूछी है, पर थर्ड ऑप्शन ध्यान से देखो तो किलोमीटर पर आवर में है, और फोर्थ ऑप्शन है मीटर पर सेकंड में। तो चलो अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, एवरेज स्पीड, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? वो P से Q तक गई और फिर Q से P आई। P से Q 3, Q से P भी 3, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। जाने का टाइम 15 मिनट, आने का टाइम 30 मिनट्स, तो टोटल टाइम क्या हो गया? 15 प्लस 30 यानी 45 मिनट। ठीक, अब ये 3 प्लस 3 ये तो किलोमीटर में है, तो इसको भी ना आप आवर्स में चेंज कर लो। आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 45/60 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो मिनट को आवर से चेंज करना है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 60। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन 45/60। 3 प्लस 3 इज 6 अपॉन 45, और यहां ये हो जाएगा इंटू 60। तो देखो, 15 3s आर 45, 15 4s आर 60, 3 2s आर 6 एंड दिस 2 4s आर 8। तो क्या हो गया? ये 8 किलोमीटर पर आवर, विच इज ऑप्शन नंबर 3। हर स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं मीटर पर सेकंड में आंसर क्या होगा। मीटर पर सेकंड में आंसर क्या होगा? तो देखो, किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे
5/18 से, हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे 5/18 से, तो क्या हो गया 2 4s are 8, 2 9s are 90, तो ये क्या आ गया 4 5s are 20 एंड इट इज अपॉन 9, क्या हो गया 20/9 मीटर पर सेकेंड, और यही दिया हुआ है कि हर एवरेज स्पीड इज 20/9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन भी कैसा है, करेक्ट। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। आउट ऑफ 4 3 ऑप्शंस आर करेक्ट कि उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, या फिर 20/9 मीटर पर सेकेंड है। तो कुछ इसी तरह के सवाल आपके nth एग्जाम में भी होंगे। अब अगर इस सेशन के बाद आप लोग मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप लोगों को फील हो रहा है कि हाँ ये तो इजी है, या मैं भी ये कर सकता हूँ, एटलीस्ट ट्राई तो करूँ, देन डू फिल द nth फॉर्म। क्लियर? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। I am Rimpi, Chemistry Faculty at Akash Institute, and today I am gonna discuss some nth sample questions for class 7th with you all. I am gonna discuss chemistry section with you people. पूरा section नहीं, just few samples I am gonna discuss with you all. इसी type के questions आपको nth में देखने को मिलेंगे. So let's move ahead. So the first question that we have on our screen is study the following table carefully. एक table दी हुई है जिसमें एलिमेंट दिए हुए ए और डी, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। टाइप, अपीयरेंस, हार्डनेस, कुछ कंटेंट गिवन है, कुछ मिसिंग है। आपको क्या करना है, वो मिसिंग कंटेंट फाइंड आउट करना है और फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। ठीक है, सो लेट्स सी दी टेबल। एलिमेंट ए है, उसका टाइप है बी, अपीयरेंस है सी, और वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो एलिमेंट ए के बारे में आपको सिर्फ इतना पता है कि वो एक सॉफ्ट एलिमेंट है। ऑप्शन से फाइंड आउट करते हैं। फॉस्फोरस सॉफ्ट तो है, तो ये हो सकता है। अब फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो ये बी हो जाएगा, नॉन मेटल। फॉस्फोरस डल है अपीयरेंस में, फॉस्फोरस अपीयरेंस में डल है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब बात है डी एलिमेंट की। दिस इज डी, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, तो दिस इज डी। ये कह रहे हैं कि जो डी है वो एलिमेंट नहीं पता उन्हें क्या है, टाइप भी नहीं पता कि मेटल है या नॉन मेटल है, लेकिन पता है कि अपीयरेंस में डल है और हार्डनेस जो है वो सॉफ्ट है। एक सॉफ्ट है और डल एलिमेंट है, तो इसने बोला कि डी जो है वो एल्यूमिनियम हो सकता है क्या। एल्यूमिनियम तो बहुत शाइनी मेटल है, तो यानी कि डल तो उसकी अपीयरेंस नहीं होगी। दैट मीन्स इसकी वजह से ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता। लेट्स मूव टू दी अदर ऑप्शन नाउ। अगेन फिर से बात करो, सॉफ्ट एलिमेंट है पोटेशियम, सॉफ्ट तो है, ट्रू। मेटल है, बिल्कुल ठीक बात है। कह दिया डल है, क्या पोटेशियम एक डल मेटल है? नहीं, मेटल है, वेरी शाइनी, तो दिस ऑप्शन इज अगेन इनकरेक्ट। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, सल्फर। सिर्फ हमें पता है कि सॉफ्ट है, तो हाँ इट कुड बी सल्फर। सल्फर है, राइट, नॉन मेटल है, राइट। अब बोल रहे हैं कि सल्फर शाइनी है, क्या सल्फर शाइनी हो सकता है? नहीं, सल्फर इज अ नॉन मेटल, इट इज नॉट शाइनी, so this is incorrect option. Let's move to the fourth one. Again सिर्फ सॉफ्ट पता है कि A जो है वो सॉफ्ट एलिमेंट है, क्या A सोडियम हो सकता है? यस, सोडियम इज सॉफ्ट, ट्रू। वो मेटल है, B मेटल हो जाएगा, सोडियम एक मेटल है, बिल्कुल ट्रू। सोडियम शाइनी है, ये भी ठीक बात है। फिर बात करते हैं D की। हमें पता है D सॉफ्ट, D डल है और D सॉफ्ट है, D डल है और सॉफ्ट एलिमेंट है, तो डी कह रहे हैं कि सल्फर हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, डी सल्फर हो सकता है, ये डल भी है और ये सॉफ्ट भी है, और डी जो है वो नॉन मेटल है, ट्रू, सल्फर इज अ नॉन मेटल। तो ऑप्शन नंबर 4 में सारे आपके जो आपको यहाँ पे वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, दे फिट इनटू द टेबल वेरी ब्यूटीफुली। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव अहेड एंड सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, Radheshyam is a village farmer. On testing the soil sample of his field, he was advised to add lime in the soil. The nature of the soil before adding the lime was. अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसने बोला लाइम ऐड की थी। लाइम का नेचर क्या होता है? लाइम का
नेचर क्या होता है? बेसिक। अगर राधे श्याम जी को एडवाइस मिला है कि बेसिक सब्सटेंस अपनी सॉइल में ऐड करो, तो इसका मतलब उनकी सॉइल का नेचर क्या होगा? सॉइल का नेचर क्या रहा होगा? एसिडिक रहा होगा। एसिडिक सॉइल होगी तो हम क्या एडवाइस करेंगे कि एसिडिक सॉइल में आप बेसिक सब्सटेंस ऐड कर दो ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और सॉइल का नेचर क्या हो जाए? न्यूट्रल नेचर हो जाए, राइट? तो इसका मतलब सॉइल का नेचर बिफोर एडिंग लाइम क्या था? एसिडिक नेचर था। तो विच ऑप्शन कंटेन्स एसिडिक? ऑप्शन नंबर 2 कंटेन्स एसिडिक। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट? इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। ये थे आपके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है दैट इज योर मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट MCQ टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है थोड़ा सा लेंथी है, बट अगेन बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। एंथे में अपने पेपर, किसी भी पेपर में, इनफैक्ट किसी भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है। 1 बाय 1 स्टडी करते चलो, लाइन बाय लाइन स्टडी करते चलो और अपना आंसर फाइंड आउट करते चलो, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन दैम, ठीक है? ऑप्शन देखो क्या है। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस एक्स। मैग्नीशियम एयर में बर्न करता है तो आपको एक्स मिल रहा है। व्हाट इज एक्स? मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स एक्स क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सेकेंड वन इज आयरन फॉर्म्स अ लेयर ऑफ वाई when exposed to moist air। किसकी लेयर बनती है आयरन पे? रस्ट की लेयर। और रस्ट क्या है यहाँ पे? रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? फेरिक ऑक्साइड, राइट? फेरिक ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन इज एक्स, जो कि आपका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन से पता चला था ना, एक्स क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड dissolves in water to form what? मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? इट गिव्स यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो Z आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आपने अपने XYZ आइडेंटिफाई कर लिए। अब अपनी ऑप्शंस देखो और जो करेक्ट है उनको मार्क करते चलो, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो द फर्स्ट ऑप्शन X इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। X हमने आइडेंटिफाई किया था, इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड which is obtained as a powdery ash by the complete burning of magnesium ribbon। Yes, it is true। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एक वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ वो बर्न करता है एंड यू विल ऑब्टेन पाउडरी एश एट द एंड एंड दैट पाउडरी एश इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज correct। The next is Y। Y is rust। True। Y हमने identify किया था, it is rust which is ferric oxide and its formation can be prevented by galvanization। What is galvanization? Galvanization क्या है? आप आयरन को रस्ट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम आयरन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं। आयरन के ऊपर जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन को क्या हम रस्टिंग से बचा सकते हैं गैल्वेनाइजेशन होने से? ट्रू। आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज अगेन करेक्ट। X इज एसिडिक whereas Y इज बेसिक इन नेचर। फिर से देखो, X आपका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपका एसिडिक नहीं है, दैट इज बेसिक इन नेचर। वेयर एज Y जो कि आपका क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, इट इज बेसिक इन नेचर। ट्रू। अब ये कैसे पता चलेगा कोई एसिडिक है या कोई बेसिक है? यू हैव स्टडीड इन योर 7th क्लास कि हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपने क्या किया? वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करवाई, इट हैज फॉर्म्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अपना लिटमस पेपर डिप करके देखो, ठीक है? अगर रेड लिटमस डिप करने पे ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स इट इज योर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या था? बेसिक नेचर का था। और अगर ब्लू लिटमस डिप करने पे आपको
रेड कलर दिखता है, इट मीन्स इट इज योर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। इस सॉल्यूशन में जब अपने लिटमस पेपर को यानी कि कौन से लिटमस पेपर को डिप किया, रेड लिटमस पेपर को डिप किया, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसका बेसिक नेचर है। जब आप उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे तो कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, मतलब वो एसिडिक नहीं था, वो बेसिक है नेचर में। ठीक है, तभी उसने क्या किया, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज इनकरेक्ट, तो यानी कि एसिडिक नहीं है। जबकि वाई रस्ट को, जब आपने रस्ट को ऐसे ही वाटर में डिसॉल्व किया और अब उसके अंदर आपने रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर 1 बाय 1 डिप करके देखा, सेम ऑब्जर्वेशन कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ब्लू लिटमस जो है उसने कोई कलर चेंज नहीं दिखाया। दैट मीन्स रस्ट इज योर बेसिक इन नेचर। तो यानी कि ऑप्शन 3 में जो है वाई इज बेसिक, ये ठीक है, लेकिन एक्स इज एसिडिक, ये गलत है। देन जेड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जेड क्या है आपके पास यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में आप रेड लिटमस डिप करेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। सो दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट. So for this question, option 1, 2 and 4 are the correct options, and that you are going to mark in your exam and you will get full marks for this question. So this was the sample question paper from my side, sample questions for NTHE from my side for class 7 studying students. इसी type के questions आपके exams में आएंगे. Study your NCERT thoroughly to excel in your exams, excel in your NTHE exams. Do enroll for NTHE today only, and please subscribe the channel to get timely updates and hit the bell icon. Thank you so much. All the best.